خادمہ نے رضیہ خاتون کو محل کی اندرونی دنیا کے اسرار بتا کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ ان خوابوں سے بیدار ہو گئی جو دیکھ کر اس نے والی حلب عز الدین کے ساتھ شادی کی تھی۔ رضیہ خاتون عظیم عورت تھی، اسلام کی تاریخ ساز مجاہدہ تھی۔ اپنے مرحوم خاوند نور الدین زنگی اور پاسبان اسلام صلاح الدین ایوبی کی طرح رضیہ خاتون بھی جیسے صلیبیوں کے خلاف لڑنے اور سلطنت اسلامیہ کے اتحاد اور وسعت کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ اگر خادمہ نے اسے جو راز بتایا تھا وہ حقیقت تھا تو اس عظیم مجاہدہ کی کمند ٹوٹ چکی تھی اور اس کی تلوار کند کر کے اسے قیدی بنا لیا گیا تھا۔ اس کی نوجوان بیٹی شمس النساء اسی محل میں تھی جس کے ساتھ ابھی اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ شمس النساء کی عمر اپنے باپ نور الدین زنگی کی وفات کے وقت 8-9 سال تھی۔ اس کا بڑا اور واحد بھائی الملک الصالح 11 سال کا تھا، جسے زنگی کی وفات کے بعد مفاد پرست امراء اور فوجی حکام نے سلطان بنا دیا تھا۔ اسے وہ کٹھ پتلی بنانا چاہتے تھے۔ سلطان ایوبی اس تباہ کن صورتحال پر قابو پانے کے لیے مصر سے آیا۔ یہ ایک قسم کی فوج کشی تھی۔ زنگی کی بیوہ رضیہ خاتون کی کوششوں سے دمشق پر سلطان ایوبی کا قبضہ ہو گیا۔ الملک الصالح اپنی فوج کی بہت سی نفری کے ساتھ بھاگ کر حلب چلا گیا۔ اپنی بہن شمس النساء کو بھی ساتھ لے گیا۔ ان کی ماں دمشق میں رہی اور صلیبیوں کے خلاف جہاد میں مصروف۔ شمس النساء 15-16 برس کی ہوئی تو اس کا بھائی بیمار ہو کر نزع کے عالم کو جا پہنچا۔ اس نے ماں سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ شمس النساء دمشق اپنی ماں کے پاس گئی اور کہا کہ اس کا اکلوتا بھائی اسے ملنا چاہتا ہے۔ رضیہ خاتون نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اس کے لیے وہ اسی روز مر گیا تھا جس روز سلطان بنا اور اس نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف تلوار اٹھائی تھی۔ شمس النساء واپس چلی گئی۔ اس کا بھائی الملک الصالح مر چکا تھا۔ اب شمس النساء کی ماں رضیہ خاتون اسی محل میں جہاں اس کا بیٹا مرا تھا اپنے بیٹے کے جانشین عز الدین کی بیوی بن کر آئی۔ اسے اپنی بیٹی جو اسی محل میں ہی ہو سکتی تھی ملنے نہ آئی۔ رضیہ خاتون نے خادمہ سے پوچھا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے اور وہ کیا اسے مل سکتی ہے۔ خادمہ نے جواب دیا وہ یہی ہے۔ یہ آپ اپنے آقا سے پوچھ لیں کہ آپ شمس النساء سے مل سکتی ہیں یا نہیں۔ اگر اس پر بھی پابندی ہوئی تو میں چوری چھپے ملاقات کروا دوں گی۔ رضیہ خاتون نے پوچھا تم نے اپنے گروہ کے جس کماندار کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ میری ملاقات ہو سکتی ہے۔ خادمہ نے جواب دیا کچھ دن گزر جانے دیں، یہ پتہ چل جائے کہ آپ پر کیا کیا پابندی عائد ہوتی ہے۔ آنے والے حالات کے مطابق ہر ایک مشکل کا حل نکل آئے گا۔ آپ کی شادی اچانک ہوئی اور اتنی جلدی ہوئی کہ ہم سب کو بعد میں خبر ہوئی، ورنہ آپ کو پہلے ہی خبردار کر دیا جاتا کہ شادی کی اس پیشکش کو قبول نہ کریں۔ رضیہ خاتون نے پوچھا اور میں یہ کس طرح یقین کر لوں کہ تم میری ہمدرد ہو اور میرے ہی خلاف جاسوسی نہیں کر رہی؟ خادمہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ رضیہ خاتون کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی اگر میں کوئی امیر کبیر عورت ہوتی، کسی محل کی شہزادی ہوتی، کسی شہزادے کی بیوی ہوتی اور میری حیثیت آپ جتنی ہوتی تو آپ مجھ سے ایسا سوال کبھی نہ پوچھتی۔ آپ ہر جھوٹ کو سچ مان کر دھوکے کا شکار ہو جاتی۔ میری حیثیت ایسی ہے کہ میرا سچ بھی جھوٹ لگتا ہے۔ کیا آپ کو ابھی تجربہ نہیں ہوا کہ صداقت اور جذبہ صرف غریبوں کے دلوں میں رہ گیا ہے؟ آپ کو آنے والے حالات بتائیں گے کہ آپ کو کس پر اعتبار کرنا چاہیے، ایک غریب خادمہ پر یا حلب کے بادشاہ پر جو آپ کا خاوند ہے۔ آپ مجھ پر اعتبار کرنے کا خطرہ مول لے لیں اور دعا کریں کہ اللہ آپ کی اور ہماری مدد کرے۔ خادمہ کمرے سے نکل گئی۔ رضیہ خاتون الجھے خیالوں میں بھٹکتی رہی۔ وہ کمرہ جس کی سجاوٹ اور جس کا سامان شاہانہ تھا اسے جہنم کی طرح نظر آنے لگا۔ 2-3 روز رضیہ خاتون کو عز الدین نظر نہ آیا۔ اسے کمرے میں کھانا وغیرہ پہنچایا جاتا رہا۔ خادمائیں اس کی حاضری میں کھڑی رہیں۔ اس کے آرام اور دیگر ضروریات کا خیال اس طرح رکھا جاتا جیسے وہ کوئی ملکہ ہو، مگر یہ شہنشاہی اسے ذہنی اذیت دے رہی تھی۔ وہ ایک سلطان کی بیوہ تھی۔ اس کی زندگی میں بھی اس نے اپنے آپ کو کبھی ملکہ یا شہزادی نہیں سمجھا تھا۔ اس کی صرف یہ خواہش تھی کہ مردوں کے دوش بدوش میدان جنگ میں جائے، صحراؤں میں لڑے اور اسے شہیدوں میں سے اٹھایا جائے۔ ایک روز عز الدین اس کے کمرے میں آ گیا اور مصروفیت کی بنا پر اتنے دن نہ آ سکنے کی معذرت کی۔ رضیہ خاتون نے کہا میں نے آپ کی غیر حاضری کی شکایت تو نہیں کی، میں دلہن بن کر نہیں آئی۔ میرے دل میں ایسی کوئی بھی خواہش نہیں کہ آپ ہر وقت میرے ساتھ رہیں یا ہر رات میرے ساتھ گزاریں۔ میری آدھی سے زیادہ ازدواجی زندگی تنہائی میں گزری ہے۔ نور الدین زنگی مرحوم محاذ پر رہتے تھے اور میں ان کے نہیں ان کی لاش کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ محاذ پر نہ ہوں تو سلطنت کے کاموں اور فوج کی تربیت میں مصروف رہتے، لیکن وہاں میں بھی مصروف رہتی۔ سلطنت کے بعض کاموں کی نگرانی اور شہیدوں کے گھروں کی دیکھ بھال میرے سپرد تھی۔ میں جوان لڑکیوں کو زخمیوں کی مرہم پٹی، تیغ زنی، تیر اندازی اور گھڑ سواری کی تربیت دیتی تھی۔ وہاں میں ایک کمرے میں قید نہیں تھی جس طرح یہاں بند کر دی گئی ہوں۔ یہ قید مجھے پسند نہیں۔
इज़ुद्दीन ने कहा, मैं नहीं कहता कि नूरुद्दीन ज़ंगी मरहूम ने सल्तनत के कई काम अपनी बीवी के सुपुर्द करके अच्छा नहीं किया था, लेकिन मैं किसी से ये नहीं कहलवाना चाहता कि हलब की किस्मत बनाने और बिगाड़ने में एक औरत का हाथ है। तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम पर कोई ऐसा बोझ नहीं डालना चाहता जिसका ताल्लुक इज़्दिवाजी जिंदगी से नहीं। चूंकि रज़िया खातून को इज़्ज़ुद्दीन की नीयत का पता खादिमा से चल चुका था, इसलिए उसने अपने इस दूसरे खावंद की ऐसी बातों से अपने आप को इस कदर फरेब में मुब्तला न किया कि वो प्यार का इजहार कर रहा है। वो एक ही बार आज ही उसकी नीयत को बेनकाब करने का इरादा किए हुए थी। वो कम उम्र लड़की नहीं, पुख्ताकार औरत थी। रज़िया खातून ने कहा, मगर जिस तरह मुझे इस कमरे में कैद किया गया है ये मुझे पसंद नहीं। मैं आपके हरम की कोई ज़रख़रीद लड़की नहीं। इज़्ज़ुद्दीन ने कमरे में टहलते हुए कहा, रज़िया खातून, तुम्हें वो इज़्दिवाजी जिंदगी ज़हन से उतारनी होगी जो तुमने ज़ंगी मरहूम के साथ गुजारी है। उन्होंने तुम्हें जो आज़ादी दे रखी थी वो मुझे पसंद नहीं, और ये किसी भी खावंद को पसंद नहीं आ सकती। क्या तुम बाहर घूमना फिरना चाहते हो? 4 घोड़ों की बग्घी मौजूद है, जब चाहो बाहर जा सकती हो। रज़िया खातून ने पूछा, जिसे महल के अंदर घूमने फिरने की इजाजत नहीं, उसे बाहर जाने की इजाजत कैसे मिल सकती है? क्या वाकई आपने हुक्म दिया है कि मैं महल के अंदर कहीं नहीं जा सकती? इज़्ज़ुद्दीन ने कहा, मैंने ये हुक्म तुम्हारी सलामती के लिए दिया है। तुम जानती हो कि हलब और दमिश्क में कैसी खूंरेज खाना जंगी हुई थी। सुल्तान अयूबी ने तुम्हारे बेटे को शिकस्त देकर उसे इताअत का मुआहिदा करने पर मजबूर कर दिया था, मगर यहाँ के लोगों के दिलों से वो दुश्मनी निकली नहीं। महल के अंदर ऐसे अफराद मौजूद हैं जो तुम्हें और सुल्तान अयूबी को अपना दुश्मन समझते हैं। सुल्तान अयूबी की फौज के हाथों उनके घर तबाह हुए और उनके जवान बेटे मारे गए। वो जानते हैं कि तुम सुल्तान अयूबी की हामी हो और दमिश्क पर तुमने कब्जा करवाया था। इनमें से कोई भी तुम्हें कत्ल या अगवा कर सकता है। रज़िया खातून ने कहा, वो आपको भी तो कत्ल कर सकते हैं, क्योंकि आप सुल्तान अयूबी के दोस्त और इत्तेहादी हैं। तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं कि इस किस्म के अफराद को जो इत्तेहाद इस्लामी के खिलाफ हैं पकड़ा जाए? क्या आपके पास ऐसे जासूस और मुखबर नहीं हैं जो तखरीबी अनासिर का सुराग लगाकर उन्हें पकड़वा सकें? इज़्ज़ुद्दीन ने उखड़े लहजे में कहा, मैं तमाम इंतजामात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। उसके पास कोई माकूल जवाब नहीं था। रज़िया खातून ने पूछा, क्या ये खतरा महल के सिर्फ अंदर है? आपने मुझे 4 घोड़ों की बग्घी पर जहां मैं चाहूं बाहर घूमने की इजाजत दे दी है। क्या बाहर मुझे कोई कत्ल या अगवा नहीं कर सकेगा? इज़्ज़ुद्दीन कुछ जवाब देने ही लगा था। रज़िया खातून ने उसे बोलने न दिया और कहा, मैंने आपके साथ शादी सिर्फ इसलिए की है कि नूरुद्दीन ज़ंगी मरहूम अपना जो मकसद अधूरा छोड़कर फौत हो गए हैं वो आप, सुल्तान अयूबी और मैं मिलकर पूरा करें। इसके लिए जरूरी है कि अगर अभी तक आपके ज़ेरे साया ऐसे अनासिर परवरिश पा रहे हैं जो एक और खाना जंगी के लिए जमीन हमवार कर रहे हैं, तो उनका खात्मा किया जाए और कौम में इत्तेहाद पैदा करके सलीबियों को इस सरजमीन से बेदखल किया जाए। इज़्ज़ुद्दीन ने कहा, क्या तुम्हें ये शक है कि मैं सुल्तान अयूबी का इत्तेहादी नहीं? रज़िया खातून ने कहा, क्या आप मुझे यकीन दिला सकते हैं कि इस महल पर सलीबियों के वो असरात जो मेरे बेटे ने पैदा किए थे खत्म हो गए हैं? क्या आपके तमाम उमरा और सालार बगदाद की खिलाफत के वफादार हैं? इज़्ज़ुद्दीन ने कदरे तन से कहा, तुम यहाँ सफीर बनकर आई हो या मेरी बीवी? रज़िया खातून ने कहा, मैं जो इरादे लेकर आई हूँ वो बता चुकी हूँ। मैं अपने वतन से आपके बच्चे पैदा करने और सिर्फ बीवी के इस कमरे में बंद रहने के लिए नहीं आई। मैं महल में घूम फिर कर ये मालूम करना चाहती हूँ कि हलब सलीब के साए से महफूज है। अगर नहीं तो इस अजीम शहर को महफूज करना है। मैं अपने इस इरादे से बाज नहीं आ सकूंगी। इज़्ज़ुद्दीन ने कहा, मैं तुम्हें एक बार फिर कहता हूँ कि मेरे किसी काम में दखल न देना। तुम मेरी बीवी हो और यही तुम्हारी हैसियत रहेगी। अगर तुम आज़ाद होने की कोशिश करोगी तो मैंने तुम्हें बग्घी पर बाहर जाने की जो इजाज़त दी है वो रोक लूंगा। रज़िया खातून ने कहा, अगर मैं ये शर्त कबूल न करूं तो? इज़्ज़ुद्दीन ने कहा, तो इस कमरे में कैद रहोगी। तुम मुझसे तलाक नहीं ले सकती और मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। ये कहकर इज़्ज़ुद्दीन बाहर निकल गया। खादिमा ने रज़िया खातून से कहा, आपने गलती की है। खादिमा जो पिछले दरवाजे के साथ कान लगाए इज़्ज़ुद्दीन और रज़िया खातून की बातें सुन रही थी। इज़्ज़ुद्दीन निकल गया तो खादिमा पिछले दरवाजे से अंदर आ गई। उसने कहा, अगर आप जिद करेंगी तो ये शख्स आपको फिलवाक़े ऐसी कैद में डाल देगा जो होगी आज़ादी मगर कैद से बदतर होगी। अब आपने आका की नीयत जान ली है। अब इनके साथ इस सिलसिले में कोई बात न करें। इनके सामने खुश रहें, बज़ाहिर बेहिस हो जाएं। आप जो इरादे लेके आई हैं वो हम पूरे करेंगे। मुझे ये सुनकर खुशी हुई है कि आका ने आपको बग्घी पर बाहर जाने की इजाजत दे दी है। हम आपको अपने कमानदार से मिलवाएंगे और अगर इसहाक तुर्क आ गया तो उसकी भी मुलाकात आपसे करवाएंगे। दरवाजा आहिस्ता से खुला। दोनों ने देखा रज़िया खातून की बेटी शम्सुन्निसा थी। वो दरवाजे में रुकी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आई मगर आंखों से आंसू बह निकले। मुस्कुराहट आंसुओं में बह गई। माँ ने आगे बढ़कर बेटी को गले लगा लिया और दोनों की हिचकियां सुनाई देने लगी। खादिमा बाहर निकल गई।
कुछ देर दोनों अल-मलिक अल-सौलेह को याद करके रोती रहीं। रज़िया खातून ने पूछा, तुम इतने दिन कहाँ रही? बेटी ने कहा, चचा ने आपसे मिलने से मना कर दिया था। रज़िया खातून ने कहा, वजह पूछी थी उनसे? शम्सुन्निसा ने कहा, उन्होंने गोलमोल और मोहम्मल सी वजह बताई थी। अभी अभी उन्होंने कहा है कि अपनी माँ के पास जाती रहा करो। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं बहुत मसरूफ हूँ, तुम अपनी माँ के साथ ज्यादा वक्त गुजारा करो। रज़िया खातून ने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि अपनी माँ पर नजर रखा करो और मुझे बताया करो कि उसके पास कौन आता है और क्या बातें होती हैं। शम्सुन्निसा ने मासूमियत से जवाब दिया, हाँ, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की तो थीं जो मैं समझ नहीं सकी। मैंने कह दिया था कि अच्छा बताया करूंगी। उन्होंने ये भी कहा था कि तुम्हारी माँ जिद्दी, वहमी और झगड़ालू मालूम होती है, उसे ये बताया करो कि मैं बहुत मसरूफ और परेशान रहता हूँ। रज़िया खातून ने कहा, सुनो बेटी, अब ये मासूमियत और भोलपन तर्क कर दो, तुम जवान हो गई हो। मैं ये नहीं कहूंगी कि अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। मुजाहिदों की बेटियों के हाथों पर लहू की मेहंदी लगा करती है, जिंदा कौमों की बेटियों की डोली कम ही उठा करती है, उनकी लाशें मैदान जंग से उठाई जाती हैं। तुम्हारी बदनसीबी ये है कि तुम अपने भाई और उसके मुशीरों के साए में पलकर जवान हुई हो। ये सब गद्दार हैं। तुम्हारा भाई भी गद्दार था। तुमने अपने भाई की फौज को अपने बाप की फौज और सलाहुद्दीन के खिलाफ लड़ते देखा है। तुम्हारा भाई, जिसे मैं अपना बेटा कहने से शर्मिंदगी महसूस करती हूँ, सलीबियों का दोस्त था, उन सलीबियों का दोस्त जो तुम्हारे मजहब के दुश्मन हैं। तुम्हारा बाप सारी उम्र उनके खिलाफ लड़ता रहा है। शम्सुन्निसा ने कहा, भाई सौले कहा करता था कि सलीबी बड़े अच्छे लोग हैं, वो सलाहुद्दीन के खिलाफ बातें किया करता था। माँ ने शम्सुन्निसा को बताया कि सलीबियों के अज़ाइम क्या हैं और ये भी कि उनकी दोस्ती में भी दुश्मनी है। रज़िया खातून बोलती जा रही थी और शम्सुन्निसा की आंखें खुलती जा रही थीं। माँ का एक एक लफ्ज़ बेटी के दिल में उतरता जा रहा था। उसमें ममता का सहर भी शामिल था, जिससे बेटी मशहूर होती जा रही थी। रज़िया खातून ने कहा, मुसलमान का कोई दोस्त नहीं। दुनिया की हर वो कौम जो रसूल खुदा का कलेमा नहीं पढ़ती मुसलमानों के दुश्मन है, और उनकी दुश्मनी की सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत उनकी दोस्ती है। सलीबों ने हलब, मूसल और हर्रान के उमरा से दोस्ती करके हमारी कौम को दो धड़ों में काट दिया। तुम्हारा भाई उनके हाथों खेलता रहा। खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ये है कि उम्मत का धड़ों में तकसीम होना गुनाह है, क्योंकि ये तकसीम धड़ों को आपस में लड़ाती है। कुरान का हुक्म बिल्कुल वाज़ेह है कि कुफ्फार के मुकाबले में सीसा पिलाई हुई दीवार बने रहो, मगर कुफ्फार ने अय्याशी का सामान मुहैया करके इस दीवार में शिगाफ डाल दिए थे। शैतान की बातों में जादू का असर होता है। औरत, शराब, ज़र्रो जवाहिरात और बादशाही के ख्वाब इंसान को गहरी नींद सुलाए रखते हैं। शैतान का ये काम सलीबियों ने किया। शम्सुन्निसा ने कहा, मैंने ये सब अपनी आंखों इस महल में देखा है। मैं उस वक्त छोटी थी, कुछ समझ नहीं सकी। मुझे जब भाई अल-सौलेह ने सुल्तान अय्यूबी के पास एजाज का कला मांगने के लिए भेजा तो मैं हंसती खेलती यहाँ के सालारों के साथ सुल्तान के पास गई थी। मुझे किसी ने न बताया था कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे ये मालूम नहीं था कि ये खाना जंगी थी जो सलीबियों की कारस्तानी थी। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मुझे बताओ। रज़िया खातून की आंखों में आंसू आ गए। बोली, हाँ बेटी, गौर से सुनो। इस महल में अभी तक शैतान की हुक्मरानी है। इज़्ज़ुद्दीन ने मेरे साथ शादी करके मुझे अपनी बीवी नहीं, अपना कैदी बनाया है। मैंने ये शादी सिर्फ इसलिए कबूल की थी कि खाना जंगी के इम्कानात को खत्म करके कौम में इत्तेहाद पैदा हो और सलीबियों के खिलाफ महाज आराई की जा सके। मगर मैंने जिंदगी में पहली बार धोखा खाया है, और ये कोई मामूली सा धोखा नहीं। मैं इसी सूरत हाल में अपने अज़्म की तकमील करूंगी। इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ और ताउन की जरूरत होगी। शम्सुन्निसा ने कहा, मुझे बताएं, आप पहली बार धोखे में आई हैं और मैं पहली बार असल सूरत हाल से आगाह हुई हूँ। ये बता दें कि मुझे क्या करना है। रज़िया खातून ने कहा, जासूसी, और उसे तफसील से हिदायत देने लगी। शम्सुन्निसा जब उस कमरे से निकली, उसकी ज़ात और उसके ख्यालात में इनकलाब आ चुका था। वो उस कमरे में दाखिल हुई थी तो बेपरवाह और खिलंडरी सी लड़की थी। जब कमरे से निकली तो अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाली मुजाहिदा थी। शम्सुन्निसा ने इज़्ज़ुद्दीन से कहा, आपको किसने बताया है कि मेरी माँ झगड़ालू और वहमी है? आप जानते हैं कि उनकी जिंदगी कैसी गुजरी है। वो आपको भी मेरे बाप नूरुद्दीन जंगी मरहूम जैसा नामवर जंगजू और मुजाहिदे इस्लाम बनाना चाहती हैं। इज़्ज़ुद्दीन ने कहा, वो मेरे कामों में दखल देना चाहती है। उसे ये वहम है कि मैं सलीबियों का दोस्त हूँ। शम्सुन्निसा ने कहा, मैंने उन्हें रोक दिया है और उनका ये वहम भी दूर कर दिया है कि आप सलीबियों के दोस्त हैं। उन्हें गलत न समझें, उन पर गैर जरूरी पाबंदियां आयद न करें। इज़्ज़ुद्दीन ने कहा, मैंने कोई पाबंदी आयद नहीं की। बग्घी हर वक्त मौजूद है। अपनी माँ को जब चाहो सैर कराने ले जाया करो। उनके दरमियान इसी मौजू पर बातें होती रहीं। इज़्ज़ुद्दीन ने शम्सुन्निसा की बातों को सच मान लिया।
یہ باتیں عزالدین کے دفتر میں ہو رہی تھیں۔ شمس النساء وہاں سے نکلی تو باہر عامر بن عثمان کھڑا تھا۔ اس کی عمر ابھی 30 برس نہیں ہوئی تھی۔ وجیح اور بڑا ہی پرکشش جوان تھا۔ تیر اندازی اور تیز زنی میں اس کا مقابلہ کوئی کم ہی کر سکتا تھا۔ دماغ کا بھی تیز تھا۔ وہ الملک الصالح کے خصوصی محافظ دستے کا کماندار تھا۔ اسی عمر میں اسے جسمانی اور ذہنی چستی کی بدولت اتنا بڑا عہدہ اور اتنی نازک ذمہ داری دے دی گئی تھی۔ اس کی رہائش محل کے اندر ہی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے سے وہ شمس النساء میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ شمس النساء کو پہلے ہی وہ اچھا لگتا تھا۔ اس لڑکی میں کھلنڈرا پن سا تھا۔ اسے باپ کی عظمت اور عزم سے کسی نے کبھی آگاہ نہیں کیا تھا۔ اسے محل میں بے ضرر فرد سمجھا جاتا تھا۔ اس کا بھائی مر گیا تو عزالدین نے بھی اسے بھولی بھالی اور کھلنڈری لڑکی سمجھ کر آزادی دے رکھی، اسی لیے وہ عامر بن عثمان سے ملتی ملاتی رہتی۔ اب وہ جوان ہو گئی تھی، عمر 16 برس تھی۔ اس دور میں لڑکیاں قد کاٹ کے لحاظ سے عمر سے زیادہ جوان لگتی اور بعض اسی عمر میں 1-2 بچوں کی مائیں بن جایا کرتی تھیں۔ شمس النساء تو حکمران خاندان کی شہزادی تھی، اپنے قدرتی حسن سے کچھ زیادہ ہی حسین لگتی تھی۔ عامر بن عثمان میں اس کی جو دلچسپی تھی اس کا رنگ بدل چکا تھا۔ کبھی وہ اسے چھیڑ کر بھاگ جایا کرتی تھی، مگر اب اسے دیکھ کر شرما جاتی اور اسے چوری چھپے ملا کرتی۔ یہ پاک محبت تھی جس کی شدت نے انہیں روح کی گہرائیوں تک ایک دوسرے کا گرویدہ بنا رکھا تھا۔ انہوں نے شادی کے عہد و پیمان کر رکھے تھے۔ مشکل یہ تھی کہ عامر بن عثمان شمس النساء کے خاندان کا ادنا ملازم تھا۔ وہ اس لڑکی کے رشتے کی توقع رکھ ہی نہیں سکتا تھا، پھر بھی اس نے گھر والوں کا طے کیا ہوا رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ شمس النساء عزالدین کے دفتر سے نکلی تو عامر باہر کھڑا تھا۔ شمس النساء اسے دیکھ کر مسکرائی اور اشارہ کر کے چلی گئی۔ عامر اس اشارے کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے سر ہلایا جس کا مطلب یہ تھا کہ ضرور آؤں گا۔